Good morning, students. Today we will read lesson number 13, Verb. The name of chapter is Verb. Read these following sentences. Varun is talking to Soumya. I do my work everybody. In those sentences in these two sentences, is talking and do words are written in bold, dark black color. Okay, here the words in bold tell us what the subject Varun and I are doing or do. इन दो सेंटेंसेस में इज टॉकिंग और डू वर्ड जो हैं बोल्ड हैं एंड दे आर शोइंग अस, दे आर टेलिंग अस दैट व्हाट वरुण इज डूइंग और आई एम डूइंग. ठीक है, दिस मीन्स दैट द वर्ब इज टॉकिंग एंड डू आर डूइंग वर्ड्स. इट मीन्स they are the doing verbs, means action words. Now read these sentences. Number 1, Veena is an intelligent girl. Mihir was happy. Here the word is and was are written in bold. ठीक है. Now these two words is and was are showing what Meena and Mihir is. They are called being verb. इसलिए उन्हें हम कहते हैं being verb. Is and was are showing what Meena is, what how Mihir was. Okay. Now read the following sentences. The chair has 4 legs. Meena had a pink dress. Here the word has and had are written in these two sentences. Has and had word. Both words are written in black bold form. Now they are showing, these words are showing what the chair has, what the Meena has. This means that verb has and had are the showing possession. वो बता रहे हैं कि उनके पास क्या है, पोजेशन है, उनके पास किस चीज़ का अधिकार है. Now, a verb, what is verb? A verb is used to denote that what a person, thing or animal does. वो ये बताते हैं एक्शन वर्ड्स. वर्ब ये हमें बताते हैं कि कोई पर्सन, कोई थिंग, कोई एनिमल क्या करता है. व्हाट ए पर्सन, एनिमल, थिंग और थिंग इज. कोई भी पर्सन, कोई भी एनिमल, कोई भी चीज़ क्या है. और व्हाट ए पर्सन, एनिमल और थिंग हैज़, कि कोई पर्सन क्या के पास, कोई एनिमल या थिंग या पर्सन के पास क्या है. ओके. Now we will read about doing verbs. Most of the verbs fall into this category of doing verbs, such as eat, read, drink and so on. कुछ verb ऐसी हैं जो doing verbs कहलाती हैं. It means those type of verb in which some action is done. कोई ना कोई काम किया जाता है. They show any action, any work. These verbs have different form to indicate present, past and future tense. और इस तरीके के वर्ड्स जो हैं, वर्ब जो हैं, वो 3 टाइम में 3 टेंस के हिसाब से उनके 3 फॉर्म्स होते हैं. इट मीन्स दे हैव डन इन 3 टाइम्स: प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम एंड फ्यूचर टाइम. इट मीन्स दोज एक्शन आर डन इन three different time. If that work is done in present time, then it is present tense. If that is done in past tense, past time, previous time, then it is a past tense verb. Now if the action will be done in future, then that doing verb will be future tense verb. Okay, these are doing verb. Now be verb. Be verbs are is, am, are, was, were, will be, shall be. These verb denote beings. ये verbs जो होती हैं हेल्पिंग वर्ब की तरह होती हैं, जैसे is, am, are, was, were, will be, shall be. These verb denote ये हमें बताती हैं कि कोई भी चीज़ क्या है, क्या होगी, क्या थी. ओके. प्रेजेंट टाइम में if we are talking about be verbs, then it will is, am, are. If we are talking about past tense verb, be, past time verb of be, then it will be was and were. And be verb का future time में will be and shall be. Okay.
Now we will read about have verbs. Have verbs देखिए बेटा, have verbs are have, has and had, will have and shall have. ये वो verbs होती हैं have verbs में, have, has, had, will have and shall have. These are verbs that show possession. ये हमें वो बताती हैं कि हमारे पास, किसी भी पर्सन के पास, किसी भी थिंग के पास, किसी भी एनिमल के पास क्या चीज़ है. प्रेजेंट टेंस में है तो हैज़ हैव, पास्ट टेंस में है क्या था तो वो आएगा हैड. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर टाइम क्या होगा, देन विल हैव और शैल हैव. किसी भी पर्सन के पास प्रेजेंट में क्या है, देन वी विल यूज़ हैज़ हैव. पास्ट में क्या था, देन वी विल यूज़ वो हैड. इफ फ्यूचर में क्या होगा उसके पास, देन वी विल से हैज़, will have or shall have. Okay, now what is the verb? A verb is an important part of sentence. Without verb, verb जो है sentence का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है. Without verb we cannot any sentence, and we cannot frame any sentence without a verb. Okay, बिना verb के कोई भी sentence frame नहीं होता है. नाउ स्टूडेंट वी विल रीड अबाउट ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब. किसी भी सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. रीड दी सेंटेंसेस. जुगल लव्स क्रिकेट. जुगल को क्रिकेट पसंद है. मीना स्कोल्डेड वीना. मीना ने वीना को डांटा. इन सेंटेंस 1 क्रिकेट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन जुगल लव्स व्हाट. ये पहले सेंटेंस में क्रिकेट इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन. क्रिकेट उस आंसर का क्वेश्चन है जो अगर ये पूछा जाए, इफ़ यू विल आस्क टू जुगल, जुगल व्हाट लव्स व्हाट. जुगल किसको प्यार करता है, जुगल किसको प्यार करता है, क्रिकेट को प्यार करता है. दैट इज़ द आंसर. नाउ मीना स्कोल्डेड वीना, सेकेंड क्वेश्चन. सो इन सेंटेंस नंबर 2 वीना इज़ द आंसर ऑफ मीना इज़ द आंसर ऑफ टू द क्वेश्चन. सेकेंड सेंटेंस मीना स्कोल्डेड वीना. अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं कि मीना ने किसको डांटा, मीना स्कोल्डेड whom, मीना ने किसको डांटा. सो वीना इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. सो वीना इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब स्कोल्डेड. वीना जो है वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ. ऐसे ही फर्स्ट सेंटेंस में क्रिकेट जो है ऑब्जेक्ट हुआ वर्ब का. क्रिकेट जो है लव्स वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ. जुगल लव्स क्रिकेट, जुगल को क्रिकेट पसंद है. क्या पसंद है, वी विल आस्क टू आवरसेल्फ क्या पसंद है. इफ वी आर गिविंग आंसर जुगल लव्स क्रिकेट, देन क्रिकेट इज द आंसर ऑफ व्हाट जुगल लव्स. तो यहाँ पे क्रिकेट जो है लव्स वर्ब का ऑब्जेक्ट है. ऐसे ही सेकंड सेंटेंस में वीना जो है स्कोल्डेड वर्ब का ऑब्जेक्ट है. नाउ यू शुड अंडरस्टैंड एनी ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब कम्स आफ्टर द वर्ब. कोई भी ऑब्जेक्ट जो है किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट उस वर्ब के बाद आता है. सो ट्राई टू, इफ़ यू आर आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, then you should know it, then object will come after the verb. Understand? Now we will read about transitive and intransitive verb. What is transitive verb? Read this group of verbs. Veena loves dash. Number 1 Veena loves dash. Question 2 Meena likes. These are not sentences. ये sentences पूरे नहीं हैं. Why these are not full sentence? They are incomplete because they are incomplete and require object to complete their meaning, because they are not giving full meaning. ये अधूरे मीनिंग को दे रही हैं, इनकम्प्लीट मीनिंग को शो कर रही हैं. दे आर नॉट एनी सेंस, दे हैव नॉट एनी कंप्लीट सेंस. उनका कोई पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है. इफ़ वी वॉन्ट टू मेक देम सेंसफुल, if we want to make them meaningful, then we need to add a word after verb. Then
we need to add some object after verb. Now read the same group of words along with their objective. Number 1, Veena loves Chinese food. पहले सेंटेंस में था Veena love dash, तो it was incomplete, it was a meaningless. Now second time when we are reading this sentence, Veena loves Chinese food, तो it is complete इन मीनिंग. ये हमारे को मीनिंग में पूरा क्लियर है कि हाँ मीना को क्या पसंद है, चाइनीज़ फूड पसंद है. नाउ मोना लाइक्स, मोना को क्या पसंद है, इट इज़ नॉट क्लियर टू अस. सेकेंड सेंटेंस में आप देखिए मोना लाइक्स आइसक्रीम, इट इज़ गिवन हियर व्हाट डज मोना लाइक, तो हमें पसंद क्लियर दे रखा है सेकेंड सेंटेंस में मोना लाइक्स आइसक्रीम, यानी कि मोना को आइसक्रीम पसंद है. नाउ दीज बिलो रिटन टू सेंटेंसेज आर हैव कंप्लीट सेंस, उनका पूरा मतलब निकल रहा है, उनका अर्थ पूरा है. वर्ब विच रिक्वायर ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर सेंस आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब. ऐसे वर्ब जिनको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है पूरा का पूरा कंप्लीट सेंस अर्थ देने के लिए, सेंटेंस को पूरा का पूरा कंप्लीट मीनिंगफुल बनाने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है. दोज टाइप ऑफ वर्ब आर ट्रांजिटिव वर्ब. इट मीन्स द वर्ब विच नीड एनी ऑब्जेक्ट टू fulfill their meaning, they are known as complete transitive verb. Okay, now we will read about intransitive verb. Before intransitive verb we should keep this thing in our mind. Only doing verb, doing verb means जो कि एक्शन शो करते हैं, एंड वर्ब शोइंग पोजेशन, जो कि पोजेशन शो करते हैं, कैन बी ट्रांजिटिव वर्ब, वो ही ट्रांजिटिव वर्ब हो सकते हैं. इट मीन्स बीइंग वर्ब कैन नॉट बी ट्रांजिटिव वर्ब. तो 3 टाइप के ट्रांजिटिव वर्ब्स थे, डूइंग वर्ब, बीइंग वर्ब और पोजेशन वर्ब. तो पोजेशन वर्ब और डूइंग वर्ब जो हैं वो वर्ब तो उनके साथ तो ऑब्जेक्ट चलेगा, होना चाहिए, बट दे कैन बी ट्रांजिटिव वर्ब. बट बीइंग वर्ब हैज़, हैव, हैड, no, being verb is, am, are, was, were, they cannot be transitive verb. Okay, now we will read about intransitive verb. What are intransitive verb? Clear it. Read these sentences. Jia laughed. Second, baby cried. अब यहाँ पे देखिए, जिया लाफ्ड, जिया हंसी. सेकंड है द बेबी क्राइड, बच्चा रोया. अब यहाँ पे जिया लाफ्ड, इट इज़ फुल सेंटेंस बिकॉज it has full stop. First hint is that it has completed with full stop, or it don't need any object to give to have meaningful, to become senseful. तो इसको कोई भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, ये इसका मीनिंग अपने आप में पूरा है. These sentences are complete and they do not require any object to complete their meaning. उनको अपना मीनिंग पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है. वर्ब दैट मेक कंप्लीट सेंस विदाउट ऑब्जेक्ट, ऐसे वर्ब जो विदाउट ऑब्जेक्ट के बिना ही उनका मीनिंग पूरा निकलता है सेंटेंस में, तो दे आर नोन एज intransitive verb. Intransitive verbs do not require any object. Now verb to complete predication and complements. What are verbs of incomplete predication and in complements? I am clearing you. Now for this you will read the sentence will written below here. Read these group of words. Number 1, Mrs. Kumar was. Mrs. Kumar was. अब क्या थी? It is not clear. First you are watching that this sentence has not any full stop in the end. इसके लास्ट में फुल स्टॉप भी नहीं है, ये इनकम्प्लीट है, बट इट नीड समथिंग, बट इट नीड सम वर्ड. सेकेंड सेंटेंस देखिए, द बेबी अपीयर्स, बेबी दिखता है, कैसा दिखता है, कहाँ दिखता है, इट इज़ नॉट गिवन हियर, इट इज़ इनकम्प्लीट बिकॉज इट हैज़ नॉट completed with full stop or question mark or sign of exclamation or any another sign, and it also giving not full meaning और meaning भी नहीं दे रहा है. तो द वर्ब मीन भी नहीं दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग भी नहीं इसका. द वर्ब इन दीज सेंटेंसेज वॉज एंड अपीयर
कैन नॉट मेक कंप्लीट सेंस, इनका कंप्लीट सेंस अपने आप में नहीं है। दे डोंट एक्सप्रेस एनी एक्शन और शो और पोजेशन, वो अपने आप में कोई एक्शन भी शो नहीं कर रहे हैं कि वो कोई काम कर रहे हैं। मिसेस कुमार कोई काम कर रही थी या बेबी कुछ कर रहा था या बेबी के पास कुछ है या मिसेस कुमार के पास कुछ था, ये भी पोजेशन शो नहीं कर रहे हैं। दीज आर नॉट शोइंग एनी पोजेशन और एनी एक्शन। नाउ how they will complete, how they will have meaningful, how they will become meaningful sentence. Now we will read another we will read we will complete these sentences by reading in another way. Here next 3 and 4 sentences are given here, and those in those sentences upper sentences are given in another way. तो अब हम फिर से इन sentences को read करते हैं. Mrs. Kumar was a teacher. Now first sentence was Mrs. Kumar. Now third sentence is Mrs. Kumar was a teacher. In first sentence it was not clear, but in third sentence it is clear to us what was Mrs. Kumar. Mrs. Kumar क्या थी? Mrs. Kumar teacher थी. Mrs. Kumar was a teacher. Now it is clear to us, it becomes meaningful. Now fourth sentence we are reading. The baby appears sleepy. बच्चा नींद में दिखा. कैसा दिखा? It was not given in second sentence. It was not shown in second sentence because it was some word it was missing some word. In that sentence some word was missing. Now the above sentence make complete sense because some words a teacher and sleepy have been added to words given in sentence number 1 and 2 respectively. अब हमने फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में अ टीचर और स्लीपी ऐड करके उनको एक कंप्लीट सेंस वाला सेंटेंस बना दिया, केवल एक वर्ड ऐड करके, तो दे बिकम कंप्लीट सेंटेंस. नाउ वी विल नो व्हाट इज ए वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन. नाउ अंडरस्टैंड, अ वर्ब विच डज नॉट एक्सप्रेस एनी एक्शन, ऐसा वर्ब जो कोई एक्शन को भी नहीं शो करता है, यानी उस वर्ब से ये भी नहीं पता चलता है कि वो कोई काम कर रहा है, और शो पोजेशन, और ये भी नहीं दिखाता है कि उसके पास क्या है, क्या था या क्या होगा. एंड नीड्स द हेल्प ऑफ प्रेजेंस ऑफ सम वर्ड, पर उसे एक वर्ड की ज़रूरत होती है, एक वर्ड या दो वर्ड्स की या फ्रेज की ज़रूरत होती है ताकि उस मीनिंग ताकि उस सेंटेंस को पूरा बना दिया जाए. टू मेक सेंस इज कॉल्ड वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन. तो इस तरीके के वर्ड जो कि सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए ऐड किए जाते हैं, दोज टाइप ऑफ वर्ब आर अ वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन. एग्जाम्पल: be, seems, appear, looks. These are the examples. Number 1. Now we should keep these things in our mind. Number 1, the word or words, ऐसे word or words that help a verb of incomplete predication to make sense are called complement. तो ऐसे वर्ड जिनको कि हम वर्ब को पूरा मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए केवल ऐड करते हैं, केवल लिख देते हैं, दोज वर्ड आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट. उनको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं. नंबर सेकंड अबाउट देम, नंबर सेकंड यू विल कीप इन योर माइंड, दे आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए कंप्लीट प्रेडिकेट. अब आपको मालूम है सेंटेंस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट. तो दो टाइप ऑफ वर्ड जिनको कि हम ऐड करते हैं, दे आर रिक्वायर्ड, उनकी ज़रूरत होती है टू फॉर्म ए कंप्लीट प्रेडिकेट. प्रेडिकेट को पूरा करने के लिए उनको ज़रूरत होती है, इसलिए हम उन्हें वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहते हैं. अंडरस्टैंड. नाउ वर्ब के बारे में आपने क्या क्या इस लेसन में सीखा? व्हाट यू हैव लर्नड इन दिस लेसन? फर्स्ट, ट्रांजिटिव वर्ब नीड ऑब्जेक्ट टू मेक सेंस. ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है.
Now you will keep this thing in also in your mind. Intransitive verb make sense by themselves. Intransitive verb जो है उनकी जो सेंस होती है वो अपने आप में कंप्लीट होती है. दे डू नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट. उनको किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है ताकि वो उस सेंटेंस को मीनिंगफुल बना सकें. नाउ थर्ड, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन नीड वर्ड्स और वर्ड्स नॉट ऑब्जेक्ट टू मेक कंप्लीट सेंस. जो वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन होती हैं उसमें सेंटेंस को मीनिंगफुल देने के लिए, मीनिंगफुल बनाने के लिए पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है. ओनली वी नीड अ वर्ड और वर्ड्स. ओके, तो आई हैव explain you all things about verb. Okay, thank you.